Welcome back from the break. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on NewsX's continuous coverage of the Jammu and Kashmir Assembly elections. Today is the first phase of polling in J&K of 24 seats. It's a historic day, of course, for Jammu and Kashmir. The Union Territory is voting today, of course, after 10 years. Already 11% voting has been witnessed till 9 a.m. as long lines are being seen in all 24 constituencies, including previously sensitive areas like Doda, Pulwama, Kulgam, Anantnag and Kishtwar. Voters are freely exercising their right and talking about issues, be it unity amongst communities, unemployment, price rise and governance. While Prime Minister Modi has encouraged voters to come out in record numbers, Omar Abdullah too has expressed his happiness on the voter turnout. Well, joining us now live from on ground is Mahima Kataria. She's live from Pampore in Pulwama. Mahima, how is the voter turnout there in the constituency where you are standing, and what are the main issues that voters are speaking to you about? In Jammu and Kashmir, before going to the people and getting the mood of what exactly they voted for, we'll give you a glimpse of what exactly are the colours, whether people are coming or not. We'll give you the ground reality. If I can tell my video journalists to kindly pan into the voting booth that we people are in. If we talk about Pampore, Uday, like in the morning, I correctly stated that it is located in Pulwama, and you also correctly pointed out district of Jammu and Kashmir holds an important place in the history and economy of the region. It is called City of Saffrons, as it is one of the few places in India where saffron is cultivated. If we talk about the political significance, so they're here in Pampore Assembly, constituency plays an important role or a key role in Jammu and Kashmir politics. Influence, exactly the election result here often influence the political situation in Pulwama district. If we talk about the electoral contest in Pampore, the constituency is going to witness a tough contest between the NC, the PDP, the BJP and the independent candidates we have with us. People on the ground who have voted in Pampore will go across to them and ask that what are the basic issues these people have voted for and how these people are feeling after voting and practicing their right after a decade. Sir, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक दशक बाद अब आप वोट कर रहे हैं, सबसे पहले कैसा महसूस हो रहा है वोट करने के बाद? अच्छा महसूस हो रहा था। इससे पहले तो माहौल दूसरी किस्म का था, वो तो अब कोई भी वाकिफ है। तो किन किन मुद्दों पे आपने इस बार वोट किया है? क्या कुछ ऐसे खास मुद्दे रहे हैं? हमारा मुद्दा मेन यही है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंसी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जो यहाँ के जी इज्जत अशखास हैं, लोग हैं, उन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा किया मोहम्मद मकबूल शाह एज इंडिपेंडेंट। तो हमारा फोकस यही है, जो यहाँ पे बेरोज़गारी है, दूसरे मसाइल हैं, जो हमारा यहाँ पे कारोबार बंद हुआ है, मेन फोकस हमारा यही पे रहेगा। तो उसकी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, पाम्पोर कॉन्स्टिट्यूंसी। सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप वोट करके आए हैं, एक दशक बाद वोट किया है, सबसे पहला कैसा महसूस हो रहा है? बस बड़े चंगा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या क्या इन्होंने बोला डेवलपमेंट होनी चाहिए पामपुर में, आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है? रोजगार मुद्दा है, डेवलपमेंट है? रोजगार का ही मुद्दा है, बेकारी हो गई। अच्छा, क्या? तो इससे पहले जो कैंडिडेट था पीडीपी का, उसने कुछ नहीं किया? देखा तक नहीं इधर कभी, हमने 5 साल तक उसको देखा। We have never seen him before. कभी 5 साल तक देखा ही नहीं उसको। उसको ये भी मालूम नहीं कि यहाँ का गांधी आश्रम कहाँ है। अच्छा, ये हाल थे क्या? किसी औरत ने उसको पूछा 2 दिन पहले कि यहाँ का गांधी आश्रम कहाँ है, उसको पता ही नहीं है। सर, आपने वोट किया है, मैं आपसे भी पूछूंगी, अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, कैसा आपको महसूस हो रहा है एक दशक बाद वोट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा, आपके क्या क्या मुद्दे हैं? क्योंकि सर ने कहा डेवलपमेंट मुद्दा होना चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए, उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर है, तो आपका क्या मुद्दा है? यहाँ तो मतलब रोजगार मिलना चाहिए और क्या। यहाँ के ऊपर हमारा यहाँ पत्थर के तो उसको हमने खड़ा किया यहाँ पे, यहाँ की इज्जत शहरियों ने, पॉलिटिकली नहीं। सर, मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी, आपने वोट किया? हाँ, वोट। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि वोट करने के बाद, क्योंकि एक डेकेड के बाद वोट है, तो किस तरीके की खुशी, किस तरीके से आप लोग महसूस कर रहे हैं? सबसे अच्छी बात है, आज पामपुर के लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि इसलिए बदकिस्मती ये है, पामपुर कानूशी है, पामपुर कानूशी किसी पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया। ये पामपुर को इतना बदनसीब समझा, इनको गाँव वालों को दिया, पामपुर में किसी को मैंडेट नहीं दिया।
फिर हमने अपनी बाल बोते पे हमने उठाया किसी बंदे को, इंशाल्लाह रहमान इनको कामयाब हो जाएगा या कोई जो जीतेगा। और दूसरी बात ये है, तो आपको क्या लगता है कि नहीं कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि आपने कहा कि पामपुर में आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उठाया है, सब लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की भी बात कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सा, क्या डेवलपमेंट है, रोजगार है, एक्चुअल कौन सा ग्राउंड का ऐसा ना रोजगार की बेकार ये सारा हिंदुस्तान में है, ये कश्मीर में नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान में है। यहाँ ज़्यादा पर जब से ये मिलिट्री उठी तब से ज़्यादा ही हो गया, तो मगर और मोस्ट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। ज़्यादा इसका कश्मीर पे ज़्यादा असर पड़ा, जहाँ कान कोयरी है, यहाँ पे रेत निकाल देते हैं दरिया से, क्रशर्स हैं, स्टोन क्रशर्स हैं, और यहाँ ज़ैफरान की सन्नत थी, सब कुछ जवाल में आ गया, किसी ने नज़र तक नहीं दी इनको, जो हमारी सन्नत है इनको उबारें। तो आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ? डेवलप कुछ भी नहीं, इसीलिए तो हम मजबूर हो गए। हमें वो मुद्दा नहीं है पॉलिटिकली, दूसरी बात क्या है, लेकिन मेन हमारा फोकस है बेरोजगार नौजवान। आप जहाँ भी नजर घुमाइए बेकार सब बैठे, कोई कारोबार ही नहीं है। यहाँ सबसे रोजगार था पहले ज़ाफ़रान हमारा, वो अब कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हर एक कहता है जो भी बनता है पिछले 10 सालों में हम करेंगे, किसी किया ही नहीं कुछ। हमारे सड़कें देखो, हमारे बाकी चीज़ देखो, कुछ भी नहीं है, ना हुआ है। Uday, so you can clearly see that the people have come out definitely to vote here, but they have certainly different issues, be it the development issue that has not been done in the Pampur. Taking our viewers back in 2014, it was the PDP candidate who won from this very particular constituency, and this time there are 14 Yes. candidates who are contesting from Pampur. Yes. So definitely it is not the three-sided election, but also there are 14 candidates who are going to decide the fate when it comes to Pulwama. Okay, Mahima, stay with us. In fact, let's go straight across now to Doda. Arzu Seth is joining us there from the